Hello students, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 वो कंटिन्यू करते हुए दिस इज डॉक्टर कुमुर जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, बीकानेर। पूर्व के वीडियो में जो थर्ड यानी कि आफ्टर 2005 जो सेक्शन 6 में अमेंडमेंट हुआ था और उसमें जो कोर्ट के द्वारा डिसीजंस दिए गए थे उसका इंटरप्रिटेशन किया गया था। Let's start and let's continue with Vinita Sharma versus Rakesh Sharma। उसमें पूर्व के वीडियो में बात वहां रह गई थी कि एक शब्द है जिसको कहते हैं अप्रतिबंध दायर। Let's start with the joint family property and the self-acquired property। यदि बात सेक्शन 6 की जो संशोधित अधिनियम है उसकी यदि बात होती है तो जो संशोधित अधिनियम है वह किसकी बात कर रहा है? वह जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी की बात कर रहा है। जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी यानी कि अप्रतिबंध दाय, अप्रतिबंध दाय। और यह आपको 1956 का जब समझाया था तब भी समझ में आ गया होगा। सेक्शन 6 अप्रतिबंध दाय यानी कि अनऑब्स्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के बारे में बताता है। जब संशोधित अधिनियम हुआ है धारा 6 का, और सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी के बारे में वह कुछ नहीं बोलता है, यानी कि सप्रतिबंध दाय के बारे में वह कुछ नहीं बोलता। तो जो धारा 6 है वह किस प्रॉपर्टी पर लागू होती है? सेक्शन 6 is exactly going to apply on joint family property, that is apratibandh दाय, or in English exactly the legal term is unobstructed। And exactly if you compare it, the second is the self-acquired property which is sapratibandh दाय, or you can say the legal term is obstructed। Now let's exactly understand what is unobstructed or obstructed and apratibandh दाय and sapratibandh दाय with an example। And the Supreme Court has laid emphasis, and section 6, I'm repeating again, has laid emphasis on the joint family property, that is apratibandh दाय। यदि एक F है, father, and he has two sons, S and S1. The important terminology which is exactly here, that in the unobstructed property, the father is alive. The father is alive, and the two sons and father are wanting a partition of the property. So there is no obstruction for the father. So if he is living and the partition is there, means they can claim their shares. There is no condition that father should die. Means, I'm repeating again, during the lifetime of the father, the three can claim partition. Anyone can ask for partition and be separated. So this is unobstructed. Exactly. There is no obstruction behind. And if they ask for partition, what will happen? F is going to get 1/3, S is going to get 1/3, and S1 is going to get 1/3 because they are co-partitioners and they are male descendants. This is exactly what is apratibandh दाय and unobstructed। Now let's make our confusion clear with the self-acquired property, that is sapratibandh दाय, obstructed। Obstruction is of what? Obstruction is of the father, that he has to die for the self-acquired property. If he has not made any will, any testamentary disposition, यानी कि उसके द्वारा कोई वसीयत नहीं की गई है, तो मृत्यु के बाद ही ये जो दो व्यक्ति हैं, यही वाली बात, ये जो दो व्यक्ति हैं
तभी इनको आधा आधा मिलेगा। ये एक अंतर है बहुत बड़ा, यानी कि सप्रतिबंध दाय में ऑब्स्ट्रक्शन फादर, he has to die, and then only from the self acquired property the persons, the sons, can claim their shares. This is exactly what is section 6. Section 6 is exactly on the joint family property that was interpreted by the Supreme Court. And now the daughter. So let's start with another issue. This is the two words which I wanted to explain. Another issue which was, you can say, the third problem, was another issue which was by the Supreme Court, because in the previous videos I have already answered with the two issues. Let's start with another issue, and that is what? Suppose exactly, let's make a daughter by birth and she's taking a birth. Let's start with this. Fine. A daughter has, you can say, a suit was filed in 1995. For partition, and 2005, exactly 1995, the suit was, because I am going with another issue, another problem. The suit was filed in 1995 for the partition. Fine. In 2005, this Amendment Act, and the date is what? 9/9/2005. Fine. Suppose some month, not before, you can say before 9th month, you can say exactly 6th month, that is 1/6/2005, the preliminary decree was passed. I am not saying the final decree was passed, only the preliminary decree was passed, यानी कि प्रारंभिक डिक्री आ गई, परंतु अंतिम डिक्री नहीं हुई। तो यहां थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट ने सीपीसी का, यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड को ध्यान में रखते हुए कहा एक ही बात, कि जब प्रीलिमिनरी डिक्री आ गई और फाइनल डिक्री नहीं आई, तो क्या 9/9/2005 को जो डॉटर है, यहां तो जो सूट फाइल हुआ था वह किन्होंने किया था? सन्स ने, क्योंकि तब तक ये जो अधिनियम है वहां डॉटर्स को को-पार्शनरी एज अ को-पार्शनर पार्टीशन करने का अधिकार ही नहीं था एज अ को-पार्शनर। परंतु जब 1995 में सूट फाइल हुआ तो सारे ही मेल थे। 1/6/2005 को, एक अपनी डेट ले ली, 1/6/2005 को, ये एग्जाम्पल समझाने के लिए, 1/6/2005 को प्रीलिमिनरी डिक्री आ गई, लेकिन उससे पहले फाइनल डिक्री आती, उससे पहले 9/9/2005 को क्या हुआ कि यह संशोधित अधिनियम आ गया। तब क्या, अब यह प्रॉब्लम है, तब क्या डॉटर जिसने पहले जन्म ले लिया था, whether she can claim as a co-partial, whether she has the right, तो यहां ये आंसर इस तरह से दिया गया, क्योंकि प्रीलिमिनरी डिक्री है, there is no final decree, so the objection can be raised firstly, और टाइम बाउंड भी चला गया तो भी फाइनल डिक्री से पहले there is no question कि कितनी भी मल्टी प्रीलिमिनरी डिक्रीज कैन बी गिवन बाय द कोर्ट, यानी कि कोर्ट के द्वारा ये पाबंदी नहीं कि एक ही प्रीलिमिनरी डिक्री आई, यदि किसी ने ऑब्जेक्शन रेज किया, यदि किसी को अधिकार मिल रहा है वहां डॉटर को, क्योंकि को-पार्शनर के रूप में मिल रहा है, तो वह क्लेम कर सकेगी, क्योंकि यहां मात्र और मात्र प्रीलिमिनरी डिक्री आई है, ना कि फाइनल डिक्री। सो बिफोर द फाइनल डिक्री द डॉटर, बिकॉज अमेंडमेंट एक्ट हैड कम, had been exactly in effect, the daughter as a co-partitioner can claim partition, even though
if the preliminary decree had been passed by the court. फाइन. अब एक और बात इसी में समझा दूं मैं कि ये जो अधिनियम है वह ये कह रहा है एग्जैक्टली धारा 6 का 5, नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन shall apply to a partition which has been effected before the, this is very important, before the 20th November 2004. ये इंपॉर्टेंट डेट है. सी हर डेट इंपॉर्टेंट है. 9/9/2005 इंपॉर्टेंट है. अब इन्होंने एग्जैक्टली एक और डेट दे दी, वह है 20 नवंबर 2004. यदि 20 नवंबर 2004 से पहले पार्टीशन हो चुका है तो वह एक्चुअल पार्टीशन माना जाएगा. 2004 से 2005 के बीच यदि कोई पार्टीशन होता है तो वह फेक पार्टीशन माने जाएंगे और तब डॉटर क्लेम कर सकेगी. मेरे कहने का मतलब इतना है, सुप्रीम कोर्ट का कहने का मतलब इतना सा है कि ये और यह अधिनियम जो सांसद चाह रही थी वह यह चाह रही थी कि यह जो डेट है 20 नवंबर 2004, क्योंकि यहां राज्यसभा में बिल आ चुका था और कोई फेक यानी कोई ऐसा उस 2004 के बाद कोई इस प्रकार का पार्टीशन नहीं हो, इसलिए उन्होंने एक डेट बना दी कि अब से 2004 से पूर्व के जो भी पार्टीशन हुए हैं उन्हें एक्चुअल पार्टीशन माना जाएगा, क्योंकि उस समय डॉटर एज अ कोपार्टनर क्लेम ही नहीं कर सकती थी. परंतु 2020 नवंबर 2004 के बाद यदि कोई पार्टीशन होता है तब उसको वापस से वह पार्टीशन में क्लेम कर सकेगी. कौन? वह है डॉटर एज अ कोपार्टनर. मैं वापस ये दो बात रिपीट कर दूं कि मैंने एक चीज रिपीट की कि 1995 में जो वाद है वह संस्थित हुआ न्यायालय में. 2005 1/6/2005 को एक प्रिलिमिनरी डिक्री आ गई एक एग्जाम्पल के मामले में और 9/9/2005 को अधिनियम संशोधित अधिनियम लागू हो गया. क्योंकि वहां अंतिम डिक्री लागू नहीं आई कोर्ट के द्वारा तो डॉटर को एज अ को-पार्टनर, ये पूर्व की बात है क्योंकि अब तो बहुत समय बीत गया, क्योंकि डॉटर को अब वह क्लेम कर सकेगी पार्टीशन के लिए, क्योंकि प्रिलिमिनरी डिक्री के बाद फाइनल डिक्री अब तक नहीं आई थी. ठीक है. और दूसरी बात, एक और बात मैंने कही कि जो 20 नवंबर 2004 है वह भी काफी इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि यदि उससे पूर्व के भी कोई पार्टीशन यदि होते हैं तो वह एक्चुअल पार्टीशन माने जाएंगे और 2004 के बाद यदि कोई पार्टीशन होता है तब डॉटर को वह क्लेम कर सकेगी. इससे 20 नवंबर 2004 एक इंपॉर्टेंट डेट, 9/9/2005 यह भी एक इंपॉर्टेंट डेट. इस प्रकार से आज यह धारा 6 कंप्लीट. और आपको ये पता ही है कि जो सन स्पाइस ऑब्लिगेशन है वह एब्रोगेटेड कर दिया गया, उसे समाप्त कर दिया गया है. अब इस धारा के द्वारा, धारा संशोधित धारा के द्वारा कोई भी सन स्पाइस ऑब्लिगेशन जैसी चीज नहीं रही जो कि पूर्व में 2005 से पूर्व थी. सन स्पाइस ऑब्लिगेशन यानी कि सन 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 यानी कि 3 जो डिसेंडेंट है वह उनका दायित्व रहता था कि वह अपने पूर्व के जो व्यक्ति हैं उन्होंने यदि कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई उन्होंने कहीं से पैसा लिया है, उधार लिया है, तो वह उनका पायस ऑब्लिगेशन बनता था कि वह उसको चुकाए. इस प्रकार से आज यह धारा 6 कंप्लीट. थैंक यू सो मच. टेक केयर.